News of the brutal rape, torture, and subsequent death of a 23-year-old student in New Delhi on December 29, 2012 stirred outrage and protests in India and throughout the world. No other event in the recent history has drawn more attention than this case to the status of women in India. As discussion on this topic rages throughout the media, we asked ourselves, what is the status of women in India? We believe there is no simple or single answer to this question. India's history and culture have been shaped by myriad invaders, chief among them Persians, Greeks, Turks, and the British. While little has remained constant throughout India's long, rich, and complex history, not much has changed with regard to the position of women in Indian society. While women are confined to household duties, it is the men who are the sole bread earners. What has remained constant is the low status of women in India's deeply rooted patriarchal culture. While it is true that the lives of the majority of women in India is shaped by their inferior status, it is equally true that Indian women's lives cannot be reduced to a simple generalization. India is the home of women like Rani Lakshmi Bai, who was one of the leading figures of the Indian Rebellion of 1857 and for Indian nationalists a symbol of resistance to the rule of the British East India Company, and Bibi Khem Kaur, who outlived her husband and helped anti-British forces in the Second Anglo-Sikh War in 1849. They were powerful enough to take up the sword and fight against armies of men to protect and serve what they believed was theirs. In contrast, India is also the home of women like Lata, Mala, Sushma, Jaya, who have never had the privilege of owning anything and have only known a life of servitude. It is true that India is home to women like Kiran Bedi, Kalpana Chawla, Sania Mirza, who exercise their right to choose their own careers, defying all gender boundaries and expectations. It is also true that India is the home of what Nobel winner Amartya Sen refers to as millions of missing girls. Girls deprived of the right to be born, killed in the womb simply for being a girl. Increasing sex-selective abortions have led to a declining sex ratio. India is also home to political leaders such as Indira Gandhi, the longest-serving female Prime Minister ever, Sarojini Naidu, Pratibha Patil, the first female president. Women who have confidently ruled states and the country, made and implemented rules and policies. India is also the home of girls who do not have the power to make any choice in their life. Despite national laws prohibiting child marriage, it continues to persist in India, with 1 in every 4 girls being married before the age of 15. In this land of stark contrasts, on one hand, women are idolized in the form of Kali, Saraswati, and Durga, who are deeply revered and worshipped. On the other hand, it is also the home of women like Jasleen Kaur, who are subjected to brutal torture or burned to death because they did not bring enough dowry, killed because they failed to produce a male heir, gang raped or trafficked for the pleasure of men. Every year, over 100,000 women are killed in India in a fire-related incident. Trafficking has increased by 122% since 2011. The reported 24,000 cases of rape in 2011 show a 9.2% increase in rape from the previous year. There is little doubt there exist two very separate realities for women in India. It could be said there are two gendered Indias, just as there is little doubt that there are two very separate economic realities for citizens of India. The one India is home to the largest middle class and some of the wealthiest families in the world who have access to the best healthcare and quality private education. Their needs are serviced by modern retail stores. While on the other hand, it also has the largest number of poor living in any country who reside in slums. They live in abject poverty with limited and poor access to basic resources such as food, water, land, electricity, and transportation.
They have little to no access to even the most basic healthcare or education. Factors that so starkly divide India into two gendered and economic realities are complex and multiple. For girls born into poverty, education has the potential to serve as the fork in the road of destiny that separates the poor from the rich, the empowered from the vulnerable. Investment in girls' education is the highest return investment. Educated girls usually marry later than what they normally would. Women usually reinvest 90% of their income in their families. Education leads to increase in wages. The pivotal role of education in social transformation is universally accepted, as is the fact that education is a necessary precursor to the attainment of all other rights. Education is one of the key factors that helps in breaking the cycle of poverty. With a view to make education accessible to every child, the government made education free and compulsory for children younger than 14 years of age. Though the structure of formal schooling has evolved over time, gender, caste, and class issues continue to distinctively divide access to quality education. Kamla's story highlights many of these obstacles to access quality education faced by girls living in poverty. Kamla was born in Bihar. Her father died when she was young, and her mother supported the family by selling homemade snacks on the footpath. Going to school was never a choice for her. After her marriage, Kamla followed her husband to Chandigarh in search of employment. Today, Kamla earns about 5,000 rupees. नहीं गिरन आया कि न भड़ा पर। अब बच्चे भी, मेरा बड़ी फैमिली है, 6 बेटी। मालीगिरी कर रहा है इसके पापा। अब दिहाड़ी तो मेरा काम फूम है न, घर के बाहर में सफाई हो रहा मेरा काम। इसके पापा मालीगिरी कर रहा है गार्डन का। ये बच्चों पढ़ा रहा, वैसे मेहनत करके पढ़ा रहा। अब इतना पा नहीं रहा मैं खर्चा उठाने में, बच्चों का फीस लग जा रहा। Her difficulties grew with each pregnancy. Sons, Kamla's husband believes, carry forth the family name. They take care of their aging parents. They bring in a wife who will help take care of the home, and they supplement the family income. Sons are important. Kamla has had 6 daughters in the hope of bearing at least one son. As her family grew, the homeowner offered to pay for Kamla to have her tubes tied. Within India's strong patriarchal society, husbands naturally have the power to make all decisions. Kamla's husband refused to let her get her tubes tied. छोटा फैमिली होता तो अच्छा होता, बड़ी फैमिली हो के तो परिवार बढ़ने से भी महंगाई पड़ गया, काफ़ी टेंशन ज़्यादा हो गया, फिक्र ज़्यादा होता है कि किस तरह घर चलाऊं, किस तरह से राशन पानी चलाना है, किस तरह गैस के चूल्हे के। Kamla now lives in the slums of Naya Gaon, where she pays a rent of 2,500 rupees a month for one room. The family of 8 sleeps, cooks, and lives in the same room. 2 years ago, Kamla's husband lost his job. He has stopped looking for work and lies silently on the bed all day. The girls now have to negotiate heavy traffic to make the 45-minute ride each way to school. फीस इसी देना पड़ जा रहा, मुश्किल तो होता है, वो उधार लेना पड़ता है, किसी से एडवांस लेना पड़ता है, फिर वो फीस वगैरह देना पड़ता है, मुश्किल होता है, घर के खर्चा चल नहीं रहा। Kamla's oldest daughter, Pratima, dropped out of school. For the past 3 years, she has managed the house and now takes care of her younger sister. She wants to start working as a maid. Kamla is heartbroken. She wanted a different life for her daughter. It is not just Pratima. All of Kamla's daughters, except the youngest, who stays home, lack motivation to study. They do not understand the lessons and say the teachers sometimes hit them when they do not turn in their homework. The school Kamla's children attend is a Hindi medium school at the lower end of the quality spectrum. The school curriculum, structure, and teachers do little to meet Kamla's daughter's educational needs. Societal expectations, school access, quality of teachers and schools, household responsibilities, sibling care, educational cost, safety concerns, and marriage continue to be obstacles for educational access for
for a majority of girls living in poverty. For Kamala's daughters, these obstacles appear to be insurmountable. Only a small percent of children living in poverty transition into secondary education, and for those that do, the dropout rate is over 60%. On October 9, 2012, Malala Yousafzai, a 15-year-old Pakistani student, was shot for believing that every girl should have the right to an education. Malala survived and has since become a symbol of hope, resistance, and courage. The world has recognized her bravery and dedication to education by nominating Malala for many national and international awards. Time magazine recognized Malala as one of 100 most influential people in the world in 2012. There are millions of girls like Malala. They are a different kind of soldiers fighting a new war, the right to an education. For these brave soldiers, educational access is a daily battle. We would like you to meet 6 of these soldiers whose bravery, optimism, and dedication we admire deeply. Durga is 16.5 years old, studying in class 12 at Government Model School, Sector 16, Chandigarh. She is the elder of 2 children and aspires to become a nurse. फैमिली में मैं, मम्मा, पापा और मेरा छोटा भाई है। हम इस घर में 15 सालों से रह रहे हैं और यहाँ हम सेटल हुए हैं। जब मम्मी डैडी की शादी हो गई थी नेपाल में ही, तो वहाँ पे ज़रूर कोई मनी प्रॉब्लम रही होगी, तो तब करके पापा को इधर आना पड़ा होगा। और हम रह रहे हैं यहाँ पर 15 सालों से इस घर में। और पापा बेसिकली शेफ़ हैं और वो सेक्टर 32 फ्लेम्स में अभी कुकिंग कर रहे हैं। और मम्मी अंदर काम करते हैं, सारा उनका काम करना पड़ता है, खाना बनाने से लेकर सफाई एंड ऑल दैट सब कुछ करना पड़ता है। और हम The family of 5 lives in 2 rooms in the servants' quarters. One room is a bedroom, other serves as sitting room, dining room and a kitchen. काम मैं सुबह से लेके झाड़ू पोछा से खाने से लेके सारा काम करती हूँ। जो घर का जितना भी मेरे घर का काम है, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, खाना, आए गए गेस्ट को संभालना, सारा सब जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। सारा कुछ मजबूरी, कभी लगता है कि छुट्टी मिल जाती जिंदगी इस काम से, थक जाती हूँ। काम तो करना पसंद है पर बहुत ज़्यादा है, कभी थक जाती हूँ। कभी काम तो सारी जगह और बूढ़े भी करते हैं काम, तो ऐसी बात नहीं है। पर यह है कि यहाँ अंदर आती हूँ, फिर घर में जाती हूँ, फिर अंदर आती हूँ, उधर भी चलना है, इधर भी चलना है, यही है। Her mother studied up till class 2 and is proud to share that she can read Hindi and can guess English words by the first letter. हमारे बहुत से भाई बहन थे, 14 भाई बहन थे दोनों मम्मी की तरफ से हम। तो पापा मेरे छोटी माँ के पास रहते थे, तो उनके बच्चे को उन्होंने पढ़ाया, उनके डॉक्टर भी बने हैं, टीचर बने हैं, और हमें पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। यही था बात। और वो बहुत खुश होते हैं जब मैं पढ़ती हूँ, और रोते भी हैं जब मैं नहीं पढ़ती। लिटरली वो रोते हैं कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ऐसे से होता है। और जब मैं पढ़ती हूँ वो दिल से खुश होते हैं। ट्यूशन जाती हूँ, स्कूल आती हूँ, अच्छा लगता है उनको बहुत। वो समझते हैं पढ़ाई क्या है, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़े, वो मिस करते हैं अपने लाइफ का ये टाइम। तो वो कहते हैं तुम लोग ना गवाओ इसको, मतलब अपने टाइम को पूरा यूटिलाइज़ करो, पढ़ो। और मैं चाहती हूँ ये पहले तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे अच्छे से, फिर जब 25-26 साल की हो जाएगी तब शादी कर देंगे। उससे पहले ये कुछ बन के दिखाए, अपने पैरों में खड़े होके दिखाए, कुछ अपने जहाँ ऐसे घर ढूंढूंगी जहाँ पे वो नौकरी भी करने दे और माँ बाप को भी देख पाए और घर के भी, अपना घर भी संभाले, हमें भी देखे। यही चाहती हूँ मैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि जब बच्चे बड़े होंगे तभी हमारा दुख खत्म होएगा, यही सोचते हैं। Durga is a hard-working student and she topped her class in grade 10. उसके बाद अब +2 में हो, तो मुझे अब ट्यूशन्स भी हैं मेरी सारी, तो अब मैं ऐसा लगता है कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ, पढ़ भी रही हूँ, पहले से ज़्यादा मेहनत भी करती हूँ। आउटपुट बहुत कम है मेरी, बट स्टिल मैं बहुत मेहनत करती हूँ, दिखता नहीं है किसी को। स्कूल में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, स्कूल जाने में मुझे हमेशा मन करता है स्कूल जाने का। कमा तो हम लेते हैं, मैं भी 4,000-5,000 कमा लेती हूँ। रोज़ सारा घर का काम करती हूँ, सब करती हूँ, तो मैं 4-5 हज़ार में कमा लेती हूँ। फिर उसके बाद मेरे घर वाला भी 8-9 हज़ार कमा लेते हैं कमाने को। तो
और खर्च तो आपको पता है इस समय कितना महंगाई आ रहा है, कितनी राशन पानी सारा खर्च बच्चों का बथेरा होता है, तो पूरा लगभग पूरा ही हो जाता है बराबर। ट्यूशन की फीस, घर का खर्च जाके पूरा बराबर हो जाता है। महीना ख़त्म होता है तो ख़त्म ही हो जाते हैं जितनी भी कमाई होती है। तो नहीं तो अभी हमारे बस में तो बहुत मुश्किल है कि इसको पूरा लाइफ इसकी सुधारना, फिर भी कुछ कोशिश वो करेंगे, कुछ हम करेंगे तो हो जाएगा। Nashra is 16 years old and is in class 10 at Sikhya. She belongs to a family of 10. Her oldest brother is 17 and lives with his grandparents in the village. Nashra is the second oldest. She has one younger brother and 5 younger sisters. मेरी मम्मी पापा दोनों काम करते हैं। मम्मा मेड है और पापा ट्यूबवेल ऑपरेटर है। और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ सिक्खा स्कूल में। और बहनें जो है उस बहनें भी सारे स्कूल जाती हैं, कोई 45 में है, कोई 46 में है, अलग अलग स्कूलों में सारे पढ़ते हैं। बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में बेटियों को, बाकी फिर ऐसे ही आ गए थे, इसी सिलसिले में आ गए थे। उधर गांव थी, इतनी इनकम नहीं थी, फैमिली ज़्यादा हो गए थे तो चंडीगढ़ आ गई थी। चंडीगढ़ ज़्यादा सहूलियत है। चंडीगढ़ में भी आए तो अब बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे वैसे वैसे प्रॉब्लम ज़्यादा ही बढ़ती जा रही। अब बच्चे कामयाब होना चाहते हैं, हम लोग कर नहीं पाते। वैसे तो भैया कह रहा मैं मेडिकल करना चाहती हूँ, डॉक्टरी करनी है मैंने, लेकिन बस अपना जो बैकग्राउंड है हमारी फैमिली का और जो हमारे आसपास जो माहौल है उस माहौल को देखते हुए लगता है कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगी। घर मतलब भैया वहाँ पे क्या नाम जैसे पढ़ना चाहते हैं डॉक्टरी में तो दिन रात मेहनत चाहिए, लेकिन वहाँ पे कोई टीवी चला के रखा है, किसी ने डेग चला के रखा है, अगर मना करने जाओ तो मानते नहीं है। सुबह शाम वहाँ कॉलोनी का माहौल है, लड़ाई होती रहती है, जिधर मर्जी देखो वहीं लड़ाइयाँ। पानी के पीछे कोई लड़ता है, कोई लाइट के पीछे लड़ रही है, कोई किसी के पीछे लड़ाई झगड़े बहुत हैं। तो लेकिन फिर भी क्या ना मम्मी कहते हैं कि हम तुझे करवाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर मैं डॉक्टरी करती तो मुझे उसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो मैं वहाँ रह के नहीं कर सकती। हाँ भी एक तो माहौल होगी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और दूसरी बात है पैसे की, क्योंकि मम्मी पापा हम 5 बहनें, एक मैं तो हूँ नहीं, और मेडिकल फ़ीस इतनी ज़्यादा है, तो फिर मम्मी कहते हैं कि तू अकेली तो है नहीं जो हम क्या नाम इतनी फ़ीस भर सकते हैं, इसीलिए ये थोड़ी प्रॉब्लम ये। और फिर क्या नाम सब घर में सबसे बड़ी मैं हूँ, तो फिर शादी का बन गए। मम्मी कहते हैं कि +2 के बाद तेरी शादी कर देनी है, फिर आगे वो ससुराल वाले पता नहीं पढ़ने दे ना पढ़ने दे, और फिर शादी के बाद तो फिर वैसे भी क्या नाम लड़कियाँ पढ़ नहीं सकती हैं, क्योंकि घर गृहस्थी में ही बिजी हो जाती हैं इतना। और अगर जैसे क्या नाम जैसे ससुराल अगर अच्छी मिल जाए, अगर उनका फैमिली ग्राउंड अच्छा हो तो फिर लड़कियाँ कर भी सकती हैं, और अगर उनका भी हमारे जैसे हुआ तो फिर नहीं कर सकते ऐसे में। हाँ भैया, क्योंकि मम्मी पापा भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे बाद भी 4 बहनें भी हैं, फिर मेरे वजह से फिर वो भी बैठी रहेंगी, क्योंकि सबसे बड़ी मैं हूँ घर में। इसलिए मम्मी कहते हैं कि आप हो सबसे बड़े घर में, तो मम्मी कहते हैं +2 तुझे पढ़ाऊँगी, अगर आके भी अगर हमारी हैसियत हुई तो मैं पढ़ाऊँगी, मना नहीं करते मम्मी पापा पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी मम्मी कहते फिर तेरी उम्र निकल जाएगी, फिर तेरे वजह से तेरी बहनें हैं, फिर उनका भी करियर ख़राब हो जाएगा, फिर रिश्ते के बारे में वही जो प्रॉब्लम होती है वही सारी, शादी की प्रॉब्लम है, माहौल का प्रॉब्लम है, पैसे की है प्रॉब्लम। To earn a little more, Nashra's family is involved in paper bag making. मेंबर मेरे जाता है 8 मेंबर में, वो तो कॉलोनी में हूँ, किराया नहीं देना पड़ रहा, इसलिए थोड़ी बहुत तो गुजारा हो भी जाता है ढंग से, नहीं तो फिर गुजारा करना भी मुश्किल अगर मकान किराए पे लेके रहूँ तो। और नशा की इसी में इसके 700 रुपये फ़ीस भी बड़ी मुश्किल से निकालती हूँ, ट्यूशन लगी हुई है ना ये, तो 700 रुपये इसकी फ़ीस देती हूँ। Nashra is one of the only 2 girls attending school from her neighborhood and the only Muslim girl. She wants to study so she can be independent. She wants to be a nurse. Nashra has a dream to improve her standard of living and that of her family. ये तो भी क्या नाम भैया हम कहीं गए थे ना शादी में एक बारी, तो फिर वहाँ पे मैंने देखा गरीब बच्चे थे, वहाँ पे बीमारियाँ फैली हुई थी, लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि क्या नाम वो उनका इलाज करवा सके, और वहाँ पे कहीं आसपास अस्पताल नहीं था। तो वहाँ से मेरे मन में आया कि काश अगर मैं अभी नर्सिंग करती हूँ तो क्या नाम शायद इनकी कुछ हेल्प कर सकती थी मैं। तो वहीं से मेरे मन में आया कि हाँ भी मैं नर्सिंग करूँगी, और जो मुझसे जो हेल्प होगी मेरी वो मैं इनकी करूँगी हेल्प, क्योंकि जो वहाँ पे मैंने कई लोगों को देखा था कि बीमारी की वजह से कई लोग मर रहे हैं, कईयों की डेथ भी हुई है, पास हॉस्पिटल नहीं है। तो फिर मैं चाहती हूँ कि अगर मैं वहीं से मेरे के नाम एम बना कि मैं नर्सिंग करूँगी।
Her family feels that shortage of funds and their large family size are the main obstacles in her education. मैं सोचती हूँ कि 10 साल बाद मैं एक ऊंची ऊंचाई पे हूँ, ताकि क्या ना मैं लोगों की मदद कर सकूँ जो गरीब है। मैं भी चाहती हूँ मैं नर्सिंग कर लूँ, मेरा अपना क्लिनिक हो, घर बार हो, और क्या जो मोहल्ले में हम रह रही हैं, इस मोहल्ले में रह के पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या ना पढ़े लिखे हैं नहीं जो कि समझेंगे कि पढ़ाई होती क्या चीज़ है। यहाँ पे लड़कियों को दबा के रखा जाता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि 10 साल बाद मैं ऊंचे पद पे हूँ और मेरा अपना घर हो, ताकि मैं अपने बहन भाइयों को एक अच्छा माहौल दे सकूँ, और वो भी ताकि अपने आगे सपने को पूरा कर सकें। तो सबसे ज़्यादा पैसे की प्रॉब्लम है। पैसे बगैर तो कोई काम ही नहीं हो सकता बंदे का। उसके बगैर कोई क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता बंदा। सारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है पैसे की। पैसा हो तो बंदा बच्चे को कुछ भी करा सकता है, क्योंकि पढ़ाई करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा नहीं पढ़ के अपनी प्रॉब्लम देखी है कि मैं कितनी मतलब प्रॉब्लम है मुझे। क्योंकि जब फिर मैं कोठियों में काम करने जाती हूँ, जैसे हम लोग झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, कोई मेरे आगे से करता है तो बड़ी फील होती है कि आज हम भी पढ़े होते तो हम भी शायद यहाँ पे होते, सेक्टर में होते। मैं भी रहती हूँ, हमें किसी के घर में आने नहीं पड़ता, हम भी कुछ करते हैं। तो इसलिए ही हम बेटी को पढ़ाना चाहते हैं कि हमने जो देखा ना वो इसके लाइफ में ना तो देखते कि नेचुरल जब तक पढ़ना चाहेगी, जब तक इसको पढ़ाऊंगे। जब मैं एकदम बिल्कुल ही हिम्मत हार जाऊंगी कि भाई मैं अब इसका बजट बिल्कुल नहीं संभाल सकती, और भी मेरे पास बेटियां हैं 5, उनको भी मुझे देखना है, तो फिर कोई ना कोई मुझे फैसला तो लेना पड़ेगा। Pooja is 13 and in grade 8 at Government Model School Sector 10. She is an only child. Her mother has completed her studies up to class 12. Pooja's mother is from Orissa and her father is from Bengal. They moved to the city 8 years ago. Pooja and her family live in one of 3 rooms in the servants' quarter of the house Geeta works in. They share a bathroom with the other 2 families that also live in the servants' quarter and have a small space of their own to cook in. मेरे फैमिली में मेरे पापा, मम्मी और मेरा भाई है। मेरा भाई गांव में अपनी मतलब मेरे बुआ के साथ रहता है और वहीं पे पढ़ रहा है। मेरे मम्मी पापा मेरे को यहाँ लेकर आए हैं बस मेरे पढ़ाई के लिए, और मतलब मेरे पापा वहाँ पे ऐसे काम करते थे, लेकिन मेरी मम्मी सोचती थी कि हाँ कि मेरे बच्चे को कुछ ज़्यादा ही मतलब डॉक्टर बनना हूँ, और मेरी मम्मी भी डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन वो बन नहीं पाई थी। तो इसलिए उनका एक ही सपना है कि मैं बनूँ डॉक्टर, और फिर उनकी मतलब फ्यूचर मतलब ठीक कर दूँ। डांसिंग और सिंगिंग मतलब सुनने में अच्छे लगते हैं सॉन्ग्स, लेकिन डांस मुझे ज़्यादा ही पसंद है। फिर एक स्कूल में भी 3-4 साल में प्राइवेट ऐसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई करती थी, तो बोल रहे ये सरकारी नहीं है, सरकारी करने के हो गया तो इसे में डोनेशन चाहिए। तो बोल रहे कितने हज़ार, फिर 20,000 रुपया बोल रहे थे। फिर 20,000 रुपया जब मैं देने गया, दूसरी लड़की से 40,000 रुपया मांग के इसको नौकरी दिला दिया, मेरे को दिया नहीं। फिर इसके बाद कोशिश करके फिर वही आंगनवाड़ी में, इसमें भी कोशिश करा, इसमें भी नहीं हुआ। बहुत ऐसे 4-5 मतलब नौकरी के लिए बहुत ये हो के फिर लास्ट में मेरे फिर ऐसे होते कि यहाँ एक कोठी में बच्चा का काम करने लग गई। फिर इसके बाद खाना बनाने का काम ये 215 नंबर में करा। फिर इसके बाद बस आपके ये यहाँ आ गई, यही मेरा ये है। Geeta had a dream of becoming a doctor which she could not fulfill and wants to live that dream through her daughter. पढ़ाई में मतलब वही जैसे मेरा नहीं हुआ, मैं सोच रही हूँ इसको पूरा करूँगी। वही कुछ ना कुछ है, डॉक्टर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं हो पाया तो कहीं टीचर हो, कहीं भी अच्छी नौकरी मिल जाओ, अपना जैसे पैर में खड़ा होके कुछ करना हो। मेरे तरफ ऐसे नहीं हो, तो इसलिए करके इसे बहुत कोशिश करती हूँ। पढ़ाई में भी जैसे बैठ गया, हर टाइम पूछती हूँ पढ़ाई हो गया, इसके बाद तुझे खेलने बैठ गया, पढ़ाई हो गया ना? हाँ मेरा हो गया। ये से एडमिशन पहले एडमिशन फी लेते थे, आजकल नहीं ले रहे। और बाकी किताब कॉपी का भी ये भी आधा मिलती थी, आधा तो हम खरीद करते थे। तो इस साल फिर अकाउंट खोल दिया तो पता नहीं क्या करेंगे, देखते हैं। और ट्यूशन का भी ऐसे तो लेती है 500 रुपया करके, गुजारा ऐसे मेरे जैसे अंदर से 2,500 रुपया मिलते हैं, पापा को इसका 6,000 मिलती है। तो मिलने के घर का खर्चा, गाँव भी भेजते हैं
तो ऐसे करके हो नहीं पा रहा। जो महीना 15-20 दिन हो जाता पैसा ख़त्म हो जाता, फिर इधर धार उधर धार ऐसे करके ऐसे जैसे वो इसको पढ़ाई में थोड़ा हेल्प कर लेते, क्योंकि इसको भी तो पहले ज़रूरत है ना पढ़ाई का। वही करके चलाते हैं, जैसे मर्जी कष्ट हो भी और तेरे को पढ़ाएंगे हम। In the city, Geeta sacrificed much to take care of Pooja and found that working as a maid allowed her flexibility to take care of Pooja in a way she hoped for. मैं चाहती हूँ कि 10 साल बाद मेरा अच्छा से एक बड़ा सा घर हो और उस पर मतलब वैसे तो मैं अपने मम्मी पापा को भी देखना चाहती हूँ। मेरा ये सपना है कि मैं अच्छा सा घर बनाऊँ और अपनी एक गाड़ी खरीदूँ, जिसमें मम्मी पापा को मैं घुमाना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ एक अच्छा सा क्लिनिक हो मेरा, और जिसपे मैं हमेशा अपने पापा मम्मी को अपने साथ ही रखना चाहती हूँ। और मतलब जैसे कि कोई होता है ना कि कोई कुछ पैसे नहीं दे सकता फिर भी उनका इलाज नहीं हो रहा है, मैं मूवी में भी देखती हूँ, तो मैं ये है कि मैं हमेशा हर किसी के कर दूँगी, चाहे वो कोई पैसा दे ना दे, लेकिन ये नहीं है कि जिसके पास पैसे है उसको भी मैं मुफ्त में इलाज करा ही दूँ। और मतलब जैसे कि कोई गरीब हो, जैसे मम्मी यहाँ पे वो गुरुद्वारा में जैसे खुला हुआ है ना कि पैसे बिन पैसे के देते हैं फ्री में, तो वैसे भी मैं करूँगी। तो ये सपना। पढ़ाई देखो हर दुनिया में तो सारे कुछ, जैसे नहीं पढ़ लिखी है जो अनपढ़ी लिखी है तो कुछ भी कर नहीं पाया, अंधे के तरफ बैठे हैं ऐसे, जैसे कुछ देख नहीं पाया। लेकिन पढ़ी लिखी होता तो सारे कुछ पता चल जाता, जैसे पढ़ के समझ लगे, कुछ देख के भी पता चल जाते। तो इसलिए करके भी पढ़ा रहे हैं। वो ऐसे भी कोशिश कर रहे हैं हम, मतलब जैसे कई नौकरी के बराबर हो जाएगी, जैसे +3 व MA, जैसे डॉक्टर बनने के तक जो पढ़ाई होता है ऐसे पढ़ के फिर कोशिश करेंगे, फिर कोशिश के बाहर हो जाएगी तो देखेंगे, लेकिन तब तक हम कोशिश करेंगे मम्मी पापा इसके पढ़ाई के लिए। Sangeeta is 14 years old and in class 10 at Sikhya school. She is the youngest of the 3 girls. Sangeeta's parents are from Nepal and moved to the city 20 years ago. हम 5 मेंबर्स हैं। मेरे पापा दफ्तर में काम करते हैं, वो PN है। मेरी मम्मी सिक्ख्या स्कूल में काम करते हैं, वो गार्डनिंग का काम करते हैं। मेरी 2 बहनें हैं, वो मेरे से बड़ी हैं। एक का नाम सुनीता है, एक का नाम सरिता। सुनीता अभी +2 कर रही है ओपन से, और सरिता +1 कर रही है अभी गवर्नमेंट स्कूल में। हम बहुत साल पहले अभी चंडीगढ़ आए थे नेपाल से। मैम तो 3 लड़की है, यहीं पे रहते हैं। एक पहले तीनों यहीं पढ़ते थे कि बड़ी वाली तो 10वीं में पढ़ के हट गई, बीच वाली 8वीं यहाँ 8वीं तक था, 8वीं में पढ़ के अब 9 का क्लास नहीं थी यहाँ, मैम ने यहाँ 46 मॉडल में डाल दिया। तो बस ऐसे चल रहे अभी तक। अभी छोटी वाली यही है। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, फिर 6 बजे उठ के नहाती हूँ। उसके बाद मम्मी और खाना बनाते हैं ना सुबह, तो मैं फिर खा के 7:30 पे स्कूल निकल जाती हूँ स्कूल के लिए। और फिर स्कूल में जाकर स्कूल पैदल आते हैं, उधर मेन रोड से आते हैं, 10 मिनट का रास्ता है। फिर आ जाते हैं स्कूल, फिर 8 बजे स्टार्ट हो जाती है क्लासें। सबसे पहले साइंस की क्लास होती है, तो उसमें हम अपना काम कर लेते हैं, साइंस का पढ़ लेते हैं। उसके बाद हिंदी सारे सब्जेक्ट्स का हो जाता है। फिर हमारी लंच ड्यूटी होती है, तो हम लंच लगाते हैं, फिर सारे बच्चे एक साथ खाते हैं खाना। फिर उसके बाद मतलब ऐसे करते हैं, छुट्टी हो जाती है ना, तो छुट्टी के बाद घर आते हैं। फिर घर में हम थोड़ी देर टीवी देखते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। पहले मैथ्स का करते हैं 1 आवर, फिर उसके बाद साइंस जो भी होता है उसका कर लेते हैं। फिर रात को 8 बजे खाना खाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी पढ़ाई करके फिर सो जाते हैं। Sangeeta is a below average student. She struggles with social studies. She says because her parents are poor, they cannot afford tuition for her, which she feels would help, but she says she works hard so she can pass. मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स एंड आर्ट्स है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसकी प्रैक्टिस करती रहती हूँ बार। 300 में लगे थे, थोड़ी बढ़ते गए। अभी थोड़ी खाने लायक का ठीक है। दोनों कमाते हैं ना।
तो इसीलिए मैं यहाँ स्कूल में शिक्षा स्कूल में करती हूँ। सुबह घर में ऐसे 6 बजे उठती हूँ, जल्दी नहीं उठती हूँ, थक जाती हूँ। सुबह 6 बजे उठती हूँ, लड़की सब कोई आटा गूंथते हैं, कोई सब्जी बनाने लगते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ 7:30 बजे आ जाती हूँ स्कूल में। फिर यहाँ सारा दिन करके फिर 4:30 चली जाती हूँ। 5 बज जाते हैं, घर में जाके फिर कपड़े धोने लगती हूँ। बस ये लोग झाड़ू पोछा करने लग जाते हैं, मैं कपड़े धोने लग जाती हूँ। ऐसे करते करते रात हो जाती है, फिर सुबह फिर यही आ जाती हूँ फिर दोबारा। मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। मुझे ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। मुझे जब से मैं स्कूल में लगी हूँ ना, तब से मैम अच्छा कराते हैं आर्ट, और शेडिंग्स और सारे अच्छे लगते हैं ना, नेचर का फिर बनाना। यस मैम, ये पेंसिल कलर अच्छा लगता है, और शेडिंग करना, और जो स्टिल लाइफ होती है ना, उसका करना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो पढ़े नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़े। नहीं जी, जब पापा स्कूल भेजते थे, बस्ता वो जो एक फट्टी सी होती है ना, वो जैसा वो बांस का उसमें कुछ स्याही डाल के भेजते थे मेरे पापा। मैं बकरी लेके भाग जाती थी। मेरे पापा पढ़ाने की तो बहुत कोशिश करे थे, पर जब हमें पढ़ना ही नहीं था। अब बड़े होके पछता रहे, हम भी पढ़ सकते तो ऐसे होते। अब बच्चे को देख के, सारी दुनिया को देख के ऐसे लगता है कि पढ़ने से थोड़ा अच्छा ही होता। बच्चे बताते हैं, मम्मी पढ़ते नहीं है, बकरी लेके भाग जाते हैं। पहले बताते, अब बोलते, ऐसे बोलते बच्चे। पढ़ने में कभी कभी पैसों की प्रॉब्लम हो जाती है। जब हम घर में पढ़ते हैं ना, तो फिर उधर से शोर आने लगता है। फिर हमारा एक ही रूम है, तो उधर अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो पाती। कभी कभी कुकिंग करने लगते हैं ना मम्मी, तो आवाज़ आने लगती है, और सुनीता और फिर टीवी भी चलाते हैं साथ साथ में, तो पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम होती है। फाइन आर्ट्स मैंने लेना है, तो उसके लिए फिर अगर एडमिशन लेनी है तो हमारे में पैसों की प्रॉब्लम पड़ेगी। मम्मी पापा अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा तो यहाँ 5,000 कुछ रुपए हैं, तो घर वाला का वैसे है तो तनख्वाह ठीक ठाक ही है, तभी महंगाई के ज़माने में नहीं पूरा नहीं होते। हम बच्चों के लिए तो बहुत, मेरे बच्चे बहुत बड़े ही हो, हम चाहते हैं ये अफसर हो, किसी का साथ हाथ ना फैलाए, हम तो यही चाहते हैं। हमने पहले पढ़े होते तो हम भी थोड़ा दिमाग तो होते ही है, बच्चे को भी आगे ले चलते हैं। जब हम पढ़े ही नहीं, बच्चे को हम ये डांटते हैं कि अब पढ़ो, आप लोग पढ़ो, आगे बढ़ो, पढ़ोगे तब ना कुछ होएंगे। बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ पढ़ रहे मम्मी, पढ़ रहे बोलने से कुछ ही नहीं होता है, पढ़ने चाहिए। Sangeeta wants to study so she can become someone. She says it is important for girls to study so the country will prosper. Her dream is to become an artist and go to college. She likes looking at paintings because they make her happy. मैं चाहूँगी कि मैं एक बड़ी आर्टिस्ट बन जाऊँ, मेरे फिर पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लग जाए, मैं फिर मेरा अपना घर हो, ये गाड़ी हो, तो फिर ना मम्मी और के फिर कोई परेशानी नहीं होएगी, उनको काम करने की भी ज़रूरत नहीं होएगी। मैं उनको फिर अच्छे से रहने के लिए दूँगी, मम्मी और को। Sonu is 16 years old, studying in class 12 at Government Model School Sector 16. She's the youngest of 4 children. She was born in Amritsar, where the family resided until her father died of tuberculosis and cancer when she was 3 years old. Her oldest brother became the natural head of the household and all property was transferred to his name. Soon after inheriting the family home, Sonu's oldest brother threw his mother and siblings out of the house. Sonu's mother did not receive any education. ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਇਅਰਸ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ 15 ਸੀਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਮਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਚਾ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਮੰਮਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਨਕਮ 500 ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੋਡਾਫੋਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ 16 ਮਾਡਲ 'ਚ
+2 कर रही हूँ। Currently, the family of 3 live in one room at the back of the house Sonu's mother works at. Their kitchen is under a covered corridor and they have their own bathroom. मेरी फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੈ, 2 ਬੇਟੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿੱਤਾ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ। ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਣੇ ਫਿਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਛੋੜ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਆਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। मैं सवेरे सब तो पहला उठ के ब्रश वगैरह करती हाँ, उस तो बाद सत्संग जानी हाँ, सत्संग तो अराउंड 7 बजे वापस आनी हाँ। फिर उस तो बाद स्कूल जानी हाँ, फिर स्कूल सारा दिन रहनी है। उस तो बाद 2 बजे वापस आनी हाँ, फिर 2:30 बजे तो लेके 3:30 बजे तक सोनी हाँ और फिर उस तो बाद 4 साढ़े 4 बजे तक उठ जानी हाँ। फिर थोड़ा टीवी देखती हाँ, फिर पढ़ती हाँ और खेलती बहुत घट हाँ एंड फ्रेंड्स नाल भी घट ही रहनी हाँ बिकॉज सब दे घर दूर ने। मेरा एम तो ये कि मैं IAS ऑफिसर बना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ +2 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਕਲ, ਉਹ ਵੀ IAS ਮਤਲਬ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਗਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਓਨਾ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨੌਨ ਮੈਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਲਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਦਿਨ ਗਏ, 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਛੋੜ ਹੀ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਦਾਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਰਟਸ ਲਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਫੀਸਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਔਖਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਲਾਂਗੀ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ IAS ਆਫਿਸਰ ਹੋਵਾਂ, ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਕਰਨ, ਸੋ ਦੈਟ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਾਰਸ ਵਗੈਰਾ। Meenu is 14 and in class 10 at Sikhya. She is the youngest of the 3 children. Meenu's parents are from Haryana and have lived in the city for 27 years. Her mom completed class 8 and married when she was 19. She is a housewife and her husband works as a painter. मेरी फैमिली में 5 सदस्य हैं, जो कि हम 3 भाई बहन हैं और 2 पेरेंट्स हैं। और
हम 2 बहनें एक भाई है। एक बहन की शादी हो गई है, वो करनाल में रहती है, और उनके एक लड़का है, और भाई है +2 के बाद कॉल सेंटर करता है, और मैं 10th में पढ़ती हूँ। फिर 18 साल की उम्र में मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी। तो फिर मैं इधर अपना 45 सेक्टर में हम रहते थे। फिर वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। पहले 2 लड़के मेरे ख़त्म हो गए मेरी गुड़िया से पहले, नीतू से पहले। तो फिर एक नीतू हुई, फिर उदू बाद अरुण, फिर मिनी। ते अरुण अपना नीतू दी लड़े शादी कर दी 18 साल की उम्र में। तो लड़का अपना जॉब कर रहा है, मिनी अपना पढ़ रही है। Meenu lives in a one-room dirt floor hut in colony number 5. मैं सुबह स्कूल उठती हूँ 6 बजे, फिर उसके बाद मैं स्कूल के लिए तैयार होती हूँ। 7:30 पे मैं स्कूल के लिए साइकिल से जाती हूँ मैं स्कूल। तो मैं साइकिल पे स्कूल जाती हूँ, फिर मैं 7:45 बजे तक स्कूल में पहुँच जाती हूँ। फिर उसके बाद हमारे स्कूल में लेसन वाइज वो पीरियड्स लगते हैं। फिर उसके बाद हमारी होती है 2:45 बजे छुट्टी, तो मुझे 15 मिनट्स लगते हैं आने में। मैं 3 बजे घर आ जाती हूँ। फिर आके मैं घर पे चाय चूय बनाती हूँ, फिर चाय पी के मैं फिर पढ़ती हूँ 6-7 बजे तक। फिर मैं खुद ही पढ़ती हूँ, मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर हम टीवी देखते हैं, फिर डिनर, फिर सो जाते हैं। मेरा एम है मैं टीचर बनूँ, मैथ्स टीचर। मैं चाहती हूँ मैं +1 में कॉमर्स लूँ और उसके बाद फिर मैं टीचर्स बनूं। बट टीचर में हमें उतना प्रॉफिट नहीं है जितना हम अगर मोबाइल की शॉप करते हैं। आजकल मोबाइल इतना ज़्यादा फैला हुआ है, भी हम मोबाइल से ही आगे बढ़ सकते हैं। टीचर की ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 होती है सैलरी, बट मोबाइल में हम ना महीने में ही 30,000 कमा सकते हैं। सो टीचर है भी, मैं चाहती हूँ भी टीचर बनूँ। बट ठीक है, मैं टीचर भी बनूँगी, बट उसके साथ साथ मैं कुछ और भी करना चाहती हूँ, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग या फिर कुछ और। Meenu speaks with clarity of purpose when it comes to her schooling. She tops her class in math. She takes tutoring in math every day from the same person who tutored her old sister and brother. हाँ जी, मेरी सिस्टर +2 तक पढ़े हैं, बट वो और भी चाहते थे भी पढ़े, बट पेरेंट्स ने उनकी शादी कर दी। बट ना उन्होंने कभी साइकिल चलाई और ना उन्हें सिखाई गई। बट मैंने साइकिल भी सीखी और साइकिल ली भी, और मैं चाहती हूँ भी मैं आगे पढूँ। तो मेरे पेरेंट्स मुझे, हाँ, अब मैं साइकिल भी चलाने लगी हूँ। अब मुझे कोई भी काम होता है तो मैं अपना खुद ही करती हूँ। अगर जैसे अब मेरा रोल नंबर नहीं आया था तो मैं अपना रोल नंबर लेने 17 खुद गई थी, बट मेरी दी कभी कहीं नहीं गई। उन्हें कभी कहीं वो कहे नहीं, बस वो स्कूल में जाते थे और सीधा घर आते थे। नहीं, वो तो बहुत अच्छा पढ़ती थी, वो भी बहुत अच्छा पढ़ती थी, ये भी बहुत अच्छा पढ़ रही है। तो वो घर की थोड़ी सी कमज़ोरी के कारण मैंने उसकी शादी कर दी। तो मैं हाँ चल भी अपना बड़ी लड़की, अपना पहली लड़की थी भी, अपना शादी कर दी। अब मिनी कह रही नहीं मम्मी मैं तो हजे पढ़ूंगी, स्कूल बहुत अच्छा है, पढ़ाई अच्छी करवा रहे हैं, अच्छे टीचर हैं, खर्चा नहीं होता, तो अपना सारा खर्चा स्कूल वाले उठा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा स्कूल है, हमें दिक्कत नहीं है किसी बात की। मिनी भी पढ़ने में बहुत ठीक है, हमें किसी बात की कभी शिकायत नहीं आएगी बच्चों के लिए। जिब सन पढ़ाया असी 8 पढ़े हुए हैं जी, बड़ा भेजा थानू स्कूल वास्ते कोई मना नहीं करेगा। हमारे पढ़े, हम हमारे माँ बाप कहते थे पढ़ लो जितना तुम पढ़ सकते हो। तो जब दूर दूर स्कूल होते थे, हमारे गांव में स्कूल ही 8वीं तक था, फिर बाहर वो भी नहीं भेजते थे। लड़के तो पढ़ते ही हैं जी, शहर से बाहर जाते हैं, बसों गाड़ियों में जाते हैं, लड़कियों को नहीं भेजते। नहीं, पढ़ाई का फायदा बहुत है जी, पढ़ाई नाल ही सब कुछ है जी, पढ़ाई का तो बहुत फायदा है। नहीं को लड़की कर सकती है, फिर हम अपनी हमारी फैमिली की हम नहीं चाहती भी अपना 12 करके अपना भाई नहीं पढ़ा सकते। हम कहते हैं भी हमने आगे पढ़ाना नहीं चलता है जी। हमारे इससे ऊपर लड़की को पढ़ाते नहीं है, कॉलेज में नहीं भेजेंगे। तो लड़का है अपना करे, जो अपना जो मर्जी करे। तो 12 तो सरकारी स्कूलों में है ही है जी, 12 तो करवा ही लेते हैं जी हम। सरकारी स्कूलों में फीस कम है, लड़की दी भी करवा ली, लड़के दी भी करवा ली, लड़की तीनों बच्चों की ये तो कोशिश है भी हमने सरकारी स्कूल में भी 12 ही करानी हैगी। 12 करवा के फिर कोर्स कर लो, कंप्यूटर कोर्स कर लो, जो मर्जी कर लो, भी अपना घर में बैठ के करो। आमदन जी अब 15 भी हो जाती है, 10 भी हो जाती है, बस ठेकेदार तो आमदन ही होता है। पहले तो अब ऐसे दिहाड़ी करते थे, दिहाड़ी करते करते अपना काम अच्छा करने लगे, ठेकेदारी ले ली, ठेकेदार अपना काम चलता है। हाँ, एक
सेक्टर में हमारा एक मकान होना चाहिए। भी पहले मैं टीचर बनूं, फिर मैं जॉब करूं और मेरा भाई भी इतना सक्सेसफुल होए भी हम एक मकान खरीद सके सेक्टर में। Meenu has compromised and decided to study math and do at least her bachelor's and master's in math. For some fortunate soldiers, there are individuals and organizations that provide them with valuable support. The Guru Nanak Vidya Bhandar Trust, established in 1924 by Mr. Gurpreet Singh's grandfather, ran 43 schools, all of which except one in Delhi were lost on partition. The concept of Sikhya School began in the 90s. Mr. Gurpreet Singh wanted to establish a university, but the idea never took off because of bureaucratic hassles, due to which he instead chose to set up a school. I don't remember the date now, but somewhere in the early 2001 to 2002, General Jacob was then the administrator of Chandigarh, and they announced that they were going to allot 6-7 sites for schools. So I said, all right, well, if we can't get a university going, let's get a school going. And then came the question of what sort of a school. Now, I had been to Doon, and I had friends who had been to, my children had been to Mayo, my son had been to Mayo, nephews had been to Mayo. I was very familiar with the workings of Sanawar, Mayo, Doon, YPS. So the first thought was to make it like that, a good public school. Bring it up to be one of the best in the country. Then a second thought made me think that these schools already exist, and people who can afford them apply for them. If they get in, they can get that education. But what happens to the poor child of poor parents who don't have an income even to go to normal school, forget the well-known schools which are expensive. And so I decided we would try a different model. Oh, Sikhya is absolutely unique. There is no two ways about it. Sikhya, according to my interpretation, is, I'm a Gursikh by religion, so for me Sikhya would mean beyond education. And that is what is so unique about Sikhya, that we are not defined by school boundaries and we take it much beyond that. So the object here was to make the education of these children holistic, that they would develop in every way, mentally, physically, spiritually, otherwise. We put in regular playing fields, cricket, football, hockey. We built a swimming pool, which was an Olympic-sized swimming pool for them to be able to swim. We brought in extra curriculum things like Tai Chi, boxing, karate, judo. On the table you had things like carom and other things. We taught the children painting, handicrafts and other things. The question came that these are children who will come from shacks or from jhuggies, jhomplis, where they may have no water, they may have no toilets, they may have no sanitation, they may have no electricity. They would probably not have visited a modern home. So we had to teach them the basics of what was good hygiene. So in this school we built very modern toilet facilities with all the modern fittings. Sikhya also makes sure that nutrition of children is well looked after. Lunch is served to students as well as teachers in a common mess. Unfortunately, serving society in India can prove to be a challenge. In fact, 8 years after the school has started, the estate officer has still not given a completion certificate because he says that the boundary wall which was built
was built with machine-made bricks and with a pattern rather than handmade bricks. And that's an objection. So that you do not have a completion certificate. Without a completion certificate, the Director of Education not willing to recognize the school. If they don't recognize the school, you can't get a CBSE accreditation. It is tragic that in this country, when you try to do something on your own, not only does the government not help, but the government actually creates as many obstacles as possible. So, in terms, for example, in a routine school, the maximum age difference between two kids would be 6, at best 8 months. In case of Sikhya, it could be something like 2 to 3 years. So, inter-class activity, when you're doing value education activity or something, makes sense. But then when you go for athletics, you can't have a 5-year-old compete with a 7-year-old. So then you switch to the age group criteria and things like that. That becomes a challenge, how to keep juggling it. And I mean, I've had children walk in, don't have even a scrap as evidence, no proof of birth, no proof of residence. Their parents have no proofs. Now, if you tell the parent that I need the birth certificate or I need a proof, so then they'll walk up and they'll say, ma'am, dekho, hafta lagega, 10 din lagega to go to the village, then bribe the sarpanch, and the sarpanch will do all his nakras and then get the certificate from him. It'll take us a week, 10 days minimum. In the meantime, we'll lose our dihadi, and we're all daily wagers, so forget it, don't. So how do you get across, how do you reach out to their parents without impacting the child? Because the minute you tell a child something and he goes and tells the parent that you're not supposed to drink, it's a bad thing, you're not supposed to abuse your body and yourself, the first thing the parent will do is withdraw the child from the school, because he's having to listen to something that is the unpalatable truth. So how do you juggle that? Challenges are amazing, and every day it's a new story. How to remain above the prices. Kia, you got to serve loki, or you got to do chane, or you got to do dal. It's a juggle, it's a struggle. But at the end of the day, it is so worth it. It is, we're doing something so meaningful, something that is so beneficial to the child, that you don't mind fighting it. You feel passionate, and so you feel, no, what I'm fighting for is a struggle that is worth it. Education is only one bridge to empowering girls with choice and voice, but it is an essential bridge to the other gendered and economic India. For education to fulfill its role as an equalizing agent, it must do more than serve as a vehicle for economic mobility. It must motivate us to challenge harmful traditions that view girls as less than or a burden. The following skit, performed by 9th grade students of Sikhya, does just that. जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। मुझे आशा है कि यह कहीं न कहीं आपके दिल में थोड़ी सी जगह तो जरूर बनाएगी। कायरता तो सबके अंदर होती है, जैसे कि आपके साथियों ने दिखाया। बुद्धिमान वही कहलाएगा जो इस कायरता को छोड़कर हिम्मत दिखाए। तो शुरू फिर एक छोटी सी गाथा। एक लड़की जो कि बहुत बहादुर थी, जिसे अपने अधिकारों के लिए अपने परिवार, माता पिता और रिश्तेदारों से लड़ना पड़ा। यह काम इतना आसान न था। यह वीर बाला थी कंवर। यह करीब 13 साल की थी। तभी उसका विवाह पक्का कर दिया गया। उनके गांव में यही रिवाज था। नेक्स्ट टुमारो। मैं फटाफट अपना काम खत्म कर लूं, नहीं तो माँ आएगी और बोलेगी ये कर ले और मेरे स्कूल का काम भी रह जाएगा और मुझे स्कूल में डांट भी पिटेगी। इससे बेहतर है कि मैं अपना काम खत्म कर लूं। कंवर, पता नहीं लड़की कहाँ चली जाती है, इसको तो ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है। कंवर, अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये लो, ये बैठी और इसको कहाँ ढूंढूं? कंवर, क्या है माँ? मैं तुम्हें इतनी देर से बुला रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? माँ मैं पढ़ रही थी। पढ़ना हर टाइम पढ़ती रहती है, कभी कुछ काम भी कर लिया करो। चलो जल्दी से
से झाड़ू पोछा कर दो और इसके बाद बर्तन भी कर देना जल्दी। माँ मुझे पढ़ना है, पढ़कर पुलिस ऑफिसर बनना है। तू एक लड़की है, पढ़ लिख कर क्या करेगी? झाड़ू पोछा करेगी और बच्चे ही तो पालेगी। माँ क्यों मेरा कॉन्फिडेंस कम कर देती हो? आप क्या चाहती हैं जैसे आपने अपने जीवन में दुख कष्ट तकलीफें झेली उसी व्यवस्था से मैं भी गुजरूं? औरत के चाहने या ना चाहने से क्या हो जाता है? माँ ये सब मुझे मत बताया करो, मुझे तो बस पढ़ना है, पढ़ लिख कर पुलिस ऑफिसर बनना है। क्लासरूम सीन। विशाल जा सर को देख के, सर तो नहीं आ गए। अभी देखता हूँ। सर आगे। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू सर। चलो मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले लेता हूँ। शैरन, सुनीता, लवली, सरोज, विशाल। यस सर। कंबर। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम मुझे इस पीरियड के बाद मिलना। यस कम इन। सर आपने मुझे बुलाया था। तुम उदास क्यों हो? आज तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में भी नहीं था। क्या बात है? मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। सर मैं 13 साल की हूँ, मेरी माँ बाप मेरी शादी करवाना चाहते हैं। क्यों इतनी जल्दी? क्योंकि सर हमारे गांव में यह रिवाज है कि लड़कियों की शादी बचपन में करा देते हैं। मेरी तीनों बहनों की भी शादी बचपन में करा दी गई थी। अब वो बहुत ही दुखी हैं, उन्हें बहुत ही कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी भी इसी तरह खराब हो जाए। क्या तुम्हारी बहनों ने इसका विरोध नहीं किया? जी नहीं सर, उनमें विरोध करने का साहस ही नहीं था। तुम तो बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हो। जी हाँ, मैं बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं है कि बाल विवाह गैर कानूनी है? अभी तो तुम नाबालिग हो। कल अपने पिताजी को बुला कर लाना, मैं उनसे बात करूंगा। कंवर घर पहुंचकर बैग रखती, तभी उसका भाई आता और कहता, दीदी मुझे खाना दो। अभी से तंग करता हूँ। दे मुझे खाना दो। दे। क्या है विशाल? तब पढ़ रही थी तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। ज्यादा अंग्रेजी बोलेगी, अभी तुम्हारी शिकायत मार लगाता हूँ। माँ। चुप, सारा दिन शिकायतें ही लगाता रहता है। मेरी बेटी को मारेगी, अभी बताती हूँ। हाँ माँ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। माँ कल पिताजी को स्कूल में बुलाया है। क्यों? पता नहीं। पढ़ लिख कर तो इस लड़की का दिमाग ही खराब हो गया, किसी बात का जवाब देना जरूरी भी नहीं समझती। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? क्लासरूम सीन। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। शैरन, लवली, सुनीता, विशाल। सर जी, मैं कवर करता। क्या आपने मुझे बुलाया है? क्या कवर से कोई शिकायत है? नहीं, आपकी बेटी बहुत होशियार है। होशियार का क्या करना है? लड़की तो पराईधन है, अपना घर सारे वही अच्छा है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो कंवर सिर्फ 13 साल की है और आप उसकी। मुझे पता है, आप इसका भविष्य बिगाड़ रहे हैं। आप अपनी लड़की को बहकाइए मत। हमारे गांव की यह परंपरा है कि लड़की की शादी बचपन में ही कर दी जाती है और यह परंपरा हम तोड़ नहीं सकते। ये कायरता है जो आपके गांव में लोग करेंगे, क्या आप भी वही करेंगे? हमें भी इस समाज में रहना है। मेरा एक बेटा, बीबी और बूढ़ी माँ है। अगर मैं इस परंपरा के खिलाफ जाऊंगा तो मेरा इस गाँव में रहना मुश्किल हो जाएगा और हम एक जाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। इसे परंपरा का नाम मत दीजिए, आप डरते हैं, कायर हैं आप। मैं कायर नहीं। अगर मैं अपने परिवार के बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे कायर बनने में कोई अफसोस नहीं। क्या कमर आपका परिवार नहीं? क्या कमर आपका परिवार नहीं? रुकिए, क्या कमर आपका परिवार नहीं? बस कीजिए, बहुत हो गया।
मुझको ही करना पड़ता। इसका लड़की होने का क्या फायदा। अरे ये कब आए? सुनो जी, सुनो जी। क्या है? सोने भी नहीं देते। सुनो जी, 7 दिन बाद कंवर की शादी है, उसका स्कूल से नाम कटवा दो। आजकल तो वो मेरी बात भी नहीं सुनती, ऊपर से अपने भाई को भी मारती रहती है। कटवा दो नाम। ठीक है। पिताजी मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ। चुप रहे, एक तू और एक मास्टर दोनों ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है। कंवर रोने लगती है और सोचती है कि अब मैं मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। वो मरने का सोच लेती है, तभी उसकी बहन आ जाती है। मेरे सपने पूरे ना सके इसलिए मर जाना चाहती हूँ। कंवर ये तो क्या कर रही है? मेरे सपने पूरे ना सके इसलिए मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं आपकी तरह अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। मेरे भी सपने थे, मेरे भी अरमान थे, पर मैंने इस परंपरा के आगे अपने घुटने टेक दिए। लेकिन मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी, तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं तेरे साथ हूँ। वो दिन आ गया जिसका उसके माँ बाप को इंतजार था। बारात दरवाजे पर आई। बाराती नाचने गाने में मस्त थे। थोड़ी देर बाद सभी बाराती भोजन करने के लिए बैठ गए। कंवर को कुछ समझ में ना आया कि वो क्या करे। कंवर ने पुलिस को खबर कर दी। इससे उसके माता पिता और रिश्तेदार बहुत नाराज हो गए। उनको लगा कि कंवर हमारी परंपरा को तोड़ रही है। उन्होंने कंवर को एक कमरे में बंद कर दिया। माँ खोलो, माँ मुझे पढ़ना है, माँ मुझे शादी नहीं करनी, माँ मुझे पढ़ना है, माँ मुझे शादी नहीं करनी, माँ मुझे पढ़ना है, माँ मुझे शादी नहीं करनी, माँ मुझे पढ़ना है, माँ मुझे पढ़ना है, माँ मुझे पढ़ना है, माँ मुझे पढ़ना है। आखिरकार टीचर जी ने बचाव किया। उन्होंने फिर समझाया कि कंवर को पढ़ने दिया जाए और उन सबको उसकी हिम्मत के आगे झुकना पड़ा। यह सब एक 13 साल की लड़की के लिए आसान न था। आपको पता है कंवर को इसके लिए राष्ट्रवीरता पुरस्कार भी मिला। अगर मैं भी विरोध न करती, शादी कर लेती तो अपने सपने कभी भी पूरे न कर पाती। अगर आपके आसपास भी कुछ गलत हो रहा है तो उसे जाकर आप रोकिए और उन्हें जाकर ये समझाइए कि सही और गलत क्या है। आइए हम सब यह प्रण लेते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई भी समस्या आएगी तो हम उस समस्या से भागेंगे नहीं, मरने का तो ख्याल अपने मन में भड़कने भी नहीं देंगे। उस समस्या का भाग्य सामना करेंगे। Thank you. Thank you. The focus of education, we believe, should be much broader than a means to economic mobility. It must motivate us to challenge harmful traditions. It must lead us to question how we raise our daughters to be sisters, wives, and mothers. It must lead us to question how we raise our sons to be brothers, husbands, and fathers. We must educate our children, both boys and girls, to change their family, their community, and even their country's future.